Okay student, today we are going to learn about how to entering data in the spreadsheet. Okay, so to enter any data in a worksheet, typically you're in your cell that, so you have to select the cell that where you want to enter, and in that cell the data is entered. Okay, the data entered only that in that cell. Okay, and you can enter labels, values, formulas. Okay, so what is label? You have to know that what is label. The label is the any text entered by using a keyboard, or it may combination of letter, numbers, special symbols. Okay, there they like here we are using default labels that are aligned as in the zone. These are the values that are entered within the cells. These are the in the here is a table named class, section, email address, telephone. Okay, so here we entered names, here we entered class, here we entered section, here we entered email address. Okay, and these are the labels. These are the labels that are aligned by default in the left side, always that is by default. But when you are entering the numbers, it is aligned towards right. It is aligned towards right, means towards this boundary and towards this boundary. For example, here when I am writing some name, only name, okay, and here I am enter some number. Look at that. Here the name you entered is aligned in the left side. Alignment means देखो यहाँ पर जो नाम लिखा हूँ वो हम लोग का लेफ्ट तरफ का किनारे के तरफ हो गया है, लेफ्ट का किनारे के तरफ हो गया. दैट इज कॉल्ड द अलाइनमेंट. ओके, किस तरफ हम लोग का इसको रखना चाहते हैं वो अलाइनमेंट है. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का लेफ्ट साइड ही रहता है. और ये जो नंबर है ये देखिए हम लोग का सेल का बाउंड्री ये वाला है, सेल बाउंड्री ये वाला है, और तो ये राइट साइड का बाउंड्री है और ये वाला लेफ्ट साइड का बाउंड्री है. मेरा यहाँ पर पॉइंटर को देखो, ये लेफ्ट साइड बाउंड्री, दिस इज द राइट साइड बाउंड्री. So when you enter number, any number in the cell, then that is entered, that is aligned towards the right side. And when you are enter some text, that is it is called label. Any text you enter, any in the yeah formula, okay, that are called label. तो ये सब हम लोग का राइट लेफ्ट साइड ही हम लोग का अलाइंड होता है. तो ये लेवल का चीज़ है. नेक्स्ट देखिए वैल्यूज़. वैल्यूज़ हम लोग अगर एंटर करते हैं, लेवल एक हो गया, वैल्यू और फॉर्मूला. तो वैल्यू द न्यूमेरिकल डाटा कंसिस्टिव ऑफ ओनली नंबर्स आर कॉल्ड वैल्यूज़. ये हम लोग का वैल्यू है. ये तो लेवल हो गया. लेवल मीन्स लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स भी हो सकता है लेवल में. ओके, मगर टेक्स्ट हम लोग का नॉर्मली हम लोग इसको टेक्स्ट ही बोलते हैं. तो नेक्स्ट आपका वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल डाटा कंसिस्टिव ऑफ ओनली नंबर्स आर कॉल्ड वैल्यूज. और बाय डिफॉल्ट दीज आर राइट साइड अलाइंड. इट इज दीज आर अलाइंड राइट साइड. वी ऑलरेडी हैं सीन इन हियर ऑल्सो. एनी नंबर वो राइट साइड से ही अलाइंड होता है. और एनी टेक्स्ट दैट यू एंटर्ड, it is may be a combination of A357. Here I am writing some numbers also, but it has a combination of alphabet and number and some symbols also. So this is a label. This is a label. So it is aligned left side and the number you entered is aligned right side. Okay, clear? Formula, any expression that begins with an equal to signs is treated as formula. कोई भी expression अगर आप लिखते हो, okay, that is and started with equal to sign. Okay, so
a formula is always start with or begins with equal to sign. So you have to remember this also. These questions may often time you come in the examination. So you have to remember this also. When a formula is entered in the cell in a worksheet, the value of the equation is displayed in the cell and formula bar also. Here I am writing something ADD, यहाँ पर मैं ऐड लिखा, मगर ये हम लोग का नॉर्मली फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इसको इक्वल टू साइन दे दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड लिखूंगा तो वो फॉर्मूला हो जाता है। देखिए मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो फिर वो उस टाइप का उसके सामने वो ले लेगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज लेगा, ठीक है, मगर यहाँ पर हम लोग का नहीं लेता है। क्लियर? तो ये हम लोग का नॉर्मली क्या हो गया है, फॉर्मूला बन गया। कहीं पर भी आप क्लिक करो तो वो एंटर करने के बाद ही ये आएगा हम लोग का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो the formula, when you enter some formula in a cell, the values of the equation is displayed in the cell and the formula is shown in the formula bar. Okay, so for example getting the total value of cell these to this into the C1 है, यहाँ पर हम लोग का कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, यहाँ पर एक तो टेबल दे दिया और यहाँ पर वो बोला है टोटल वैल्यू ऑफ सेल A1 एंड B1 इनटू C1। टोटल वैल्यू मीन्स इसको ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पर हम लोग को दिखना है तो वो कैसे हम लोग को ऐड करेंगे। तो मैं एक तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये टोटल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर कुछ वैल्यू में ले रहा हूँ, जैसे 5, 6, 7, 3 तो वैल्यू ले लिया और यहाँ पर मुझे उसका आंसर चाहिए। तीनों को ऐड करूँगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर चेंजेस अगर करते हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पर, तो दैट विल रिफ्लेक्ट। यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन लिया और इसको मैं ऐड करूँगा, मीन्स सेल 1 प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल और तीनों सेल हो गया। देखो ये सेल का वैल्यू को मैं लिया हूँ, मैं हम लोग सेल एड्रेस ले रहे हैं, तो उस एड्रेस में कोई भी वैल्यू रहेगा तो उस वैल्यू को वो ऐड करेगा। अगर हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज भी हो जाएगा, टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इतना ले लिए और इसको मैं एंटर कर दिया, तो ये तीनों को ऐड करने से हम लोग का यहाँ पर इतना आता है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, जैसे 5 है, मैं यहाँ पर 6 ले लिया और एंटर किया, देखो फिर यहाँ पर हम लोग का टोटल सम में भी चेंजेस आ जाएगा। यहाँ पर चेंज करोगे, मैं यहाँ पर 8 ले जा रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो चीज़ है वो मैं बताऊँगा किस लिए वो होता है, उसको रेफरेंस बोलते हैं, बट ये हम लोग का नॉर्मल फार्मूला जो यूज करते हैं। ओके, तो वहाँ पर मैं ऐड करने के लिए फार्मूला कुछ यूज किया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन फार्मूला। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम लोग फार्मूला में क्या क्या यूज करते हैं। सो नॉर्मली मैथमेटिक्स जो रहता है, मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल जो जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर प्रीसिडेंस जैसे एडिशन हैं, सब्ट्रैक्शन, प्रीसिडेंस, ये कुछ ऑपरेटर्स है। किसको पहले हम लोग यूज करना, कौन सा वैल्यू पहले हम लोग का कैलकुलेशन होता है वो प्रीसिडेंस लिया जाता है। जैसे बोर्डमास रूल आपको पता है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे बोर्डमास रूल। बोर्डमास के हिसाब से ब्रैकेट बी का, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो लाइक दैट यहाँ पर भी हम लोग का जो कैलकुलेशन होता है वो उस रूल्स के हिसाब से रहता है। तो कुछ चीज़ों को वो पहले हम लोग का करता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये प्रेसिडेंस दे दिया है। और ये ऑपरेटर्स जैसे प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टार मार्क टाइप का जो रहता है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। डिवीजन के लिए ये स्लैश मार्क, ओके,
इसको हम लोग डिवीजन के लिए यूज करते हैं, और ये जो दिख रहा है ये हम लोग का पावर के लिए यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल। ओके, सो सिंपल कैलकुलेशन अगर करना चाहेंगे तो जैसे एडिशन 23 + 6 = 29 इक्वल टू दिए, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू दी, सब्ट्रैक्शन 0 - 6 -6, मल्टीप्लीकेशन 9 × 6 = 54, जो आंसर यहाँ पर हम लोग का आ गया। डिवीजन डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड लिखेंगे, और 2 टू द पावर 5 = 32 होता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में नॉर्मली लिखते हैं अलग टाइप का, यहाँ पर हम लोग अलग लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर यूज ऑफ ब्रैकेट्स इन सिंपल इक्वेशंस। ब्रैकेट हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 4 + 5 × 3, 4 + 5 × 3, तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई बोडमास रूल जो रहता है वो बोडमास रूल भी यहाँ पर अप्लाई होता है हम लोग का मैथमेटिक्स का। तो पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद 4 के साथ, जैसे 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर 15 हो गया, फिर 4 के साथ ऐड होगा और ये 19 हो रहा है। बट अगर हम लोग ब्रैकेट यूज किए और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई दिए फिर 3 लिखे, तो ब्रैकेट का काम पहले होता है। मीन्स ये जो प्रीसीडेंस ऑपरेटर प्रीसीडेंस मीन्स फास्ट किसको वो यूज करेगा, पहले कौन सा कैलकुलेशन करेगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको वो फास्ट कैलकुलेट करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाएगा। तो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले किया, उसके बाद ब्रैकेट का वैल्यू हो गया 4 + 5 9 हो गया, 9 × 3 फिर 27। ओके, तो यहाँ पर भी 5 × 4 और टू द पावर 2, तो पहले मल्टीप्लीकेशन भी है पावर भी है। तो यहाँ पर देखो प्रेसिडेंस के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई और ये दोनों, ये पर देखो ये एक्सपोनेंशियल है और यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ये दो चीज़, ये दोनों चीज़ों में कौन सा पहले आता है, नहीं पावर पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले आता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो तीनों हम लोग का इसके अंदर है, एक तो पावर भी है एक तो मल्टीप्लाई, तो पहले पावर करेगा, मीन्स 4 टू द पावर 2, 4 एक्सपोनेंशियल 2, पावर भी बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हो, तो दैट इज 16, और मल्टीप्लाई उसके बाद होगा, मीन्स 16 × 5 = 80। ओके, और यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सबसे पहले है, हम लोग प्रेसिडेंस का देख चुके हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंस है पहले ब्रैकेट उसके बाद पावर, तो यहाँ पर ब्रैकेट है पहले, तो ब्रैकेट पहले मीन्स मल्टीप्लाई पहले होगा 5 × 4 और 20 हो गया, उसके बाद पावर 20 टू द पावर 2 दैट इज 400। तो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, तो हम लोग किस तरह उसको अरेंज करेंगे, जो इक्वेशंस हम लोग को टाइप करना होगा उसको किस तरह करेंगे उसको हम लोग, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया है उसको प्रैक्टिस करके इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग भी इसका क्वेश्चन आंसर हैं जो सॉल्व करके मुझे सेंड करना, तो ओके। तो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला विद सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल एड्रेस क्या होता है और ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग रेफरेंस लेते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।